اللهم صل على مالك الكريم رحمة للعالمين طوائل من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيت الأجريات وأزواجه وصحبه أولياء محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے آپ لوگ. میں 6 فروری سے چل رہا ہوں آج تک لگاتار سروس ہے. مرشد کا مجلس چل رہا ہے 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا لگاتار. ایک جمعہ ریسٹ رہتا تھا. 6 فروری سے آج تک چل رہا ہے. انشاءاللہ پورا مہینہ ختم ہے. اگلے مہینے میں 12 تاریخ تک مجلس ہے. مرشد پوری اپنے رحمت برکت کے سائے میں سارے کو رکھا. یقین کریں مرشد ہم لوگ خالی فرقے میں ہیں. دیوبندی ہیں، بریلی ہیں، تبلیغی ہیں، وہابی ہیں. حقانی انجمن کا آدمی ہے وہ بھی کہتا ہے میرے بھائی اچھا نہیں لگتا اگر حقانی انجمن کا ہے. کیونکہ مرشد کہتے ہیں بنا فرقہ کے عمل کے ساتھ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت ہے. خلوص نیت کے ساتھ پاک نیت کے ساتھ اس پاک مجلس میں بیٹھے انشاءاللہ برس عبادت کا ثواب لے کے جائیں گے. اب کیا چاہیے؟ آج ہم لوگ خالی فرقہ ہمارے ابا حضور ایک دم پیور دیوبندی رہنا اور وصول سے رہنا. 12 سال حقانی انجمن کا خدمت کیا. کوئی کہنے والا نہیں تھا. دیکھ لیں ایک خانقاہ میں مولانا دیوبندی صاحب تھے. مرشد سب کو رکھا. سارے کے حاضری سب کو رکھا اپنے خانقاہ کے اندر. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کی طرح کون عالم تھا؟ کوئی نہیں تھا. پوری دنیا میں کھوج جانیں گے تو نہیں ملے گا. لیکن مرشد تلاش کرتے کرتے باغماری پہنچ گئے. مرشد نے کتنا بڑا مرتبہ دیا جو کہ کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا اور رکھا. مرنے کے بعد بھی اپنے مرشد سے جدائی برداشت نہیں کیا. آج ہم لوگ زندگی میں ہی لے جا کے وظیفہ رکھ دیا. آپ پوری اپنے مرشد کو مانے. مرید کے معنی ہی آتے ہیں بکنا. آپ کی باڈی مرشد کے نام ایک اللہ کا دوست ہے. حقانی درود شریف. اللہم صل علی محمد للعالمین رحمت للعالمین شفاعت من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وأهل بيت الأجريات وأزواجه وصحبه أولياء محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مولانا صاحب سے مرشد نے کیا کہا دیکھ لیں. مرشد پریکٹیکل کیا. حاضری کرا دیا. یہاں حاضری سارے مرشد کی حاضری، اللہ کے اولیاء کی حاضری، اللہ کے دوست کی حاضری، یہاں تک کہ فرشتوں کی حاضری. اتنا بڑا مجلس نہیں ملے گا. کہیں کھوجیں گے انشاءاللہ ایسا مجلس نہیں ملے گا پوری دنیا میں جو کہتا ہے پہلے وضو کریے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے تب بیٹھیے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو بنا لے برائے مہربانی. آپ نے مجلس کی عزت کر دی، قدر کر دی. شرمائے نا. دیکھ لیں مولانا دیوبندی صاحب تو مرشد نے کیا کہا. کہتے ہیں دیوبندی بریلی تبلیغی وہابی ارے نماز قرآن وظیفہ کہو نا. یہی حقانی انجمن ہے. خالی نماز وظیفہ قرآن کہنے کے لیے آیا ہے. مولانا صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے گاچھ سے جان دلوایا. یہ حق ہے. ان کی بہت لمبی کہانی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کہانی لکھ دیا جائے. نہیں کہانی لکھ پاؤ گے؟ نہیں. لکھو گے تو عوام گولی مار دے گی. اور وہ حق ہے حقانی انجمن مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو کہ گاس سے اذان دلوایا اور ان کے مرید نے کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا. کتنا بڑا مرتبہ دیا. آج ہم لوگ لے جا کے وظیفہ تاک پر رکھ دیا. اور نہیں تو یہ حقانی انجمن کی حقانی انجمن نہیں. حقانی انجمن حق ہے. حقانی انجمن حق ہے. دیکھ لیں مولانا دیوبندی صاحب سے مرشد نے کیا کہا. اے مولانا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے کر کے دکھا دے.
मौलाना साहब परेशान हैं। मुर्शिद ने कहा कि चलो हौज पर दोनों लोग बैठ जाते हैं। अब मुर्शिद वजू करना शुरू कर देता है। पहले हाथ धोते हैं, तब से मौलाना साहब बेहोश हो गए, गिर गई ना। उसके बाद जो है मुर्शिद ने छींटा मारा, बैठा दिया, कहा कि बैठ जाओ। फिर ऐसे ही वजू पूरा करते करते मौलाना साहब 3 बार बेहोश हुए। उसके बाद जो है मुर्शिद का वजू जब पूरा हो जाता है, मुर्शिद ने क्या कहा, ऐ मौलाना तूने क्या देखा? तो मौलाना साहब ने क्या कहा, आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कितना बड़ा मर्तबा दिया अपने मुरीद को। आज हम लोग कहते हैं देवबंदी, तबलीगी, वहाबी, कुछ भी नहीं। नमाज के साथ, कुरान के साथ, वजीफे के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस देहाती ने क्या कहा, जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, 5 टाइम नमाज और 5 टाइम कुरान। हम लोगों का वजीफा कुरान से है, इसलिए हम लोग वजीफा बोल देते हैं। उस देहाती ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न मैं इससे कम करूँगा न मैं इससे ज़्यादा करूँगा, कह के जाने लगा। नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है, ऐलान कर दिया। आपका मुर्शिद क्या कहा, नमाज वजीफा, नमाज कुरान वजीफा। माँ बाप की खिदमत शर्त है, माँ बाप को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ देंगे ना तो जाने के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। कलमा नहीं मिलेगा, कलमा भूल जाएगा, इबादत भूल जाएगी। माँ बाप अगर नाराज है, दुनिया से अगर चला गया इंसान, उसकी सारी इबादत लपेट के उसके चेहरे पे मार देगा। अल्लाह ताला कहेगा, बंदा है अल्लाह मैंने तो बहुत इबादत की, कहा कि तुमने अपनी माँ को जो है तकलीफ दिया, उसके बदले में तेरी सारी इबादत तेरे चेहरे पे फेंक दिए गए। आज हम लोग क्या कहते हैं, चलो हमार लइकवा बाजारे रहल जाई तो हमार लइकवा डीएम बनी है। डीएम आहे, डीएम के देखी, एक घर वाले डीएम को पहले देखिए आप, तब तो कामयाबी, नहीं कुछ फायदा नहीं। देख ले अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हक्कानी दरूद शरीफ। अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाने का टाइम आ गया। सारे सहाबी खड़े हैं, भाई अलकमा कम से कम कलमा तो पढ़ दे। सारे लोग खड़े हैं, कह रहे हैं, लेकिन खाली आंख ऊपर करके रो रहे हैं, कलमा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लोग जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी माँ से पूछो। आज हम लोग कहते हैं माई कुछ नहीं किया, माँ जो है आपको 9 महीना 10 महीना पेट में रखा और बाहर आए तो आपको खाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, मदरसा सिखाया, नौकरी दिया, और जब उसका वक्त आ गया तो कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। वाह वाह, ये आपका नहीं चलेगा। अल्लाह का फरमान है, माँ बाप की खिदमत शर्त है, वरना देख लें अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने का वक्त है, कलमा नहीं आ रहा है। सारे सहाबी परेशान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा को कलमा नहीं आता है। कहा कि उनकी माँ से पूछो। माँ ने उनका कहा कि कहा लोगों ने कि आप उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत करा दें, आप उनके माफ़ कर दें जो भी गलती हुआ। कहा कि नहीं। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जन्नत से लकड़ी मंगाया, जमा किया। देख ले माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जोश मार रही है। एक बार खाली कह देव कि माई, कुल गुनाह माफ हो जाएगी, सब गुनाह माफ हो जाएगा। खट से दिल में लगा लेगा, माँ का इतना ही है, खाली एक बार बोलबे कुल माफ हो जाए। देख लो। उसके बाद जो है उस लकड़ी को जमा किया गया। अलकमा की माँ ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लकड़ी क्या होगा? कहा कि हम लोग लकड़ी को आग बनाएंगे और इसी में अलकमा को फेंक देंगे, जल जाएगा।
कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अलकमा को माफ़ कर दिया, आप भी दुआ फरमा दें कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। इतना कहना हम था कि अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इन्ना लिल्लाह, परवाज़ कर गए। कितना बड़ा मुर्शिद ने नेमत दिया ये हम लोगों को, है वजीफ़ा पढ़ें, कुछ ना कहें, हक्कानी अंजुमन पर अंगुली ना लगाएं, वरना अंगुलियों ना रही, नहीं रहेगा। ये जान लें, आज कुर्रा देख लें, कुर्रा देख लें, हम कोई डर थोड़े रहे हैं, नहीं, बहुत सारा चीज़ निकल के आता है। ये पता न किस मदरसे से पढ़ के वो आया है, बगैर पढ़े हुए हाफिज हो गया। ए हाफिज है, हाफिज जी बेचारा हाफिज जी नहीं के कहा, नहीं के कहा, नहीं होता है आओ के हाफिज कहा है लागो ना। आप पूरा पूरी अपने मुर्शिद के देख ले। सूफिया जान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के हाँ एक मौलाना गए, कहा कि हजूर हम हज करने जाएंगे, हज के लिए मेरा आज फ्लाइट है। कहा कि कै बजे फ्लाइट है, कहा कि 4 बजे। देख ले मुर्शिद अपने मुरीद को कैसे बचा रहा है। अब उसके बाद कहा कि हाँ मौलाना एक मिट्टी का ढेला ले लेना तयम्मुम के लिए। यहाँ तक कह दे कि आप आए तयम्मुम बर्खास्त नहीं, बर्खास्त ना हुई, मुर्शिद का हुकुम है, आप बराबर वजू से रखेगा मुर्शिद। अब जो है मौलाना साहब कहा कि बच जाएगा तो तुम्हारा, अगर एयरपोर्ट पर ले लेगा तो उसका, आपके लिए ओके तो फरिश्तों न छुई, क्योंकि मुर्शिद अल्लाह के दोस्त का हुक्म है, मिट्टी हुक्म है। अब उसके बाद वहाँ जाते हैं, यहाँ तक कि मुख्तसर में फ़्लाइट उड़ गई। उसके बाद 1 घंटे के बाद असर का वक्त हो गया और जहाज़ का पानी ख़त्म हो गया, जहाज का पानी ख़त्म हो गया। ये जो हम लोगों के पोशीदा हुए हैं हुजूर किबला, इनकी बात है। अब उसके बाद जो है अब मिट्टी का ढेला निकाल लिया और उसको देख के रोने लगते हैं, यहाँ तक कि हिचकी बन गई और लगा कि टाइम चला जाएगा और जल्दी जल्दी तयम्मुम किया। बगल वाला हाजी क्या कहता है, ए हाजी हमको भी दे दे। फिर दूसरा हाजी का, ए हाजी हमको भी दे दे। जितने उस जहाज में हाजी थे, मुर्शिद ने सारे के नमाज को तयम्मुम के जरिए बचा दिया, वरना कजा हो जाता तो सजा हो जाता। नमाज कजा नहीं, बिना कजा के। कजा का हमन के मुर्शिद क्या कहना, हमन के कजा का नियत ना है, बोलबो तो काम ही गड़बड़ा जी ना। मुर्शिद कहते हैं कजा का नियत नहीं है, कजा नहीं करने का, जिस हाल में हो उसी हाल में नमाज पढ़ो। ये ना कहो कि मेरा ठेहुना दर्द, क्या दर्द, क्या दर्द। एक देख ले अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ताला ने उसको 32 साल चरपाई पर चित लेटा के रखा। कैसा 32 साल, उसका आधा उम्र ख़त्म हो गया। 32 साल चित लटा के रखा और उसके दिल में आया, ए अल्लाह हमको मूसा की ज़ियारत करा दे। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का रास्ता घुमा देते हैं अल्लाह ताला। वहाँ पहुँचते हैं क्या, और वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बंदा किस बात का शुक्रिया है। कहा कि ए मूसा, ए बंदा, ये अभी मेरी जबान सलामत है जो मैं अल्लाह का नाम ले लेता हूँ, इससे बढ़ के क्या चाहिए। एक जबान उसकी चल रही थी, उस पर उसको इतना यकीन था। कहा कि कोई ख्वाहिश, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, कहा कि देख ले मैं ही मूसा हूँ। और दूसरी ख्वाहिश, एक गिलास पानी लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए और इधर आया, शेर बबर फाड़ फूड़ के फेंक दिया, पैर कहीं, हाथ कहीं, सिर कहीं फेंक दिया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है, अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि ए मूसा, इसको मैंने 32 साल चरपाई पर चित लेटा के रखा, क्या इसको एक गिलास में पानी नहीं दे सकता हूँ। देख लो ये जन्नत में टहल रहा है। आज देख ले हम लोग कहते हैं ठेवना में दर्द, का है दर्द, आ कह कि कुर्सी लिया हुआ, कुर्सी पर नमाज का बा, नमाज सुत जा। मस्जिद में हमारे हाफिज जी ने कहा सुत जा, लेट जा, पढ़ो, लेकिन
कुर्सी पर पढ़ब तो वो बोल दे, बोले में देरी थोड़ो बा ना। आप नमाज को पूरा पूरी एहतमाम करें। नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के। एक अल्लाह के औलिया हैं, देख ले, हम लोग कहते हैं ना एक अल्लाह के दोस्त ने क्या, देख ले निजामुद्दीन औलिया की बात है। निजामुद्दीन औलिया एक मस्तान थे, देख ले शेर पर सवार से लगैले बाल लमिया लगा दिया। निजामुद्दीन औलिया उनका कुछ सामान जा रहा था ऊंट पर लद के, चाहे घोड़े पे। एक सवाल किया, मस्तान थे, सवाल करते हैं भाई किसका सामान जा रहा है? कहा कि ये तो निजामुद्दीन औलिया का सामान है। कहा कि ये औलिया कब से हो गया? इसका तो मेरे रजिस्टर में नाम ही नहीं है, इसका मेरे रजिस्टर में नाम नहीं है। इतना कहनाम था कि निजामुद्दीन औलिया खानकाह से निकल के घूमने लगे। उनका एक मुरीद था, वहाँ लिखा हुआ है पहले मेरे मुरीद के मजार पर जाओ, उसके बाद तब मेरे यहाँ आओ। वहाँ लिखा हुआ है, अब जाएंगे पढ़ेंगे तब ना। जाते हैं मुड़ी गोद के चले आते हैं, नहीं कहते हैं मजार पर शिरिक बा। फातिहा पढ़ना शिरिक है? फातिहा करना शिरिक है क्या? खाली शिरिक शिरिक कह के चल जाता हूँ सो। अब उसके बाद जो है निजामुद्दीन औलिया, वो मुरीद उनका एक बांसुरी बनाया, बांसुरी उन्हीं का इजाद किया हुआ है, वो मुरीद का नाम नहीं आ रहा मुझे अब जो है। और उसी इलाके में गए जहाँ की वो मस्तान रहते थे, और वो मस्तान एक मारवाड़ी के लड़के से प्यार करते थे। वो भी हिंदू मारवाड़ी था, बड़े बड़े जुल्फ थे, और जो है घोड़ा बन के अपने पीठ पर उसको बैठा लेते थे, और उनके जुल्फ को लगाम बनाकर खींचता था, टिक टिक करता था। कहा धीरे धीरे खींचो, दर्द होता है। अल्लाह का औलिया किस पर राजी हो जाएगा, देख लें, कहते हैं ना। उसके बाद जो है कहा कि उसी इलाके में पहुंच जाते हैं, और जो भी अपना कर्तव्य दिखाया, और वही लड़का आता है। कहा कि ये बांसुरी हमें चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इसकी बहुत कीमत है। कहा कि तुम आसमान मांगो आसमान दे दूं, जमीन मांगो जमीन दे दूं, लेकिन हमको चाहिए। अब उसके बाद जो है बांसुरी ले लेता है। कहा कि अपने बाबा से यही कहला दो, निजामुद्दीन औलिया, यही कहना था बस। कहा कि ये कोई बात नहीं, दे दे मुझे। ले जाके खटवार पटवार डाल दिलो, सूत गई घोरे। अइला मस्तान, उनके बाप से पूछा फलाने कहाँ है? कहा कि वो तो सोया हुआ, पता नहीं क्या, बहुत मायूस से जाते हैं। कहा कि बेटा क्या बात है? जमीन मांगो जमीन दे दूं, आसमान मांगो आसमान दे दूं, लेकिन तुम नाराज मत हो। हिंदू था, हिंदू मारवाड़ी रहल। उसके बाद जो है अब जो है कहा कि कहिए कि निजामुद्दीन औलिया आ गया तुम्हारे यहाँ। कहा कि नहीं, कहिए निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तू औलिया, यानी उसको कहा ना तू औलिया। देख ले संविधान सिस्टम बदल दिया, वो भी हिंदू है। कहा कि तू औलिया। उसके बाद कहा कि कहिए निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तेरा बाप औलिया। कहा कि कहिए निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तेरा दादा औलिया। यहाँ तक कि 7 पुश्त पहुँचा दिया। गड़े हुए तो नहीं कहते हैं, फेंके हुए रुई को जमा कर दिया, सारे को 7 पुश्त औलिया बना दिया एक अल्लाह के दोस्त ने। कहा कि पूरी दुनिया औलिया, लेकिन आप कहें कि निजामुद्दीन औलिया। अब उसके बाद कहते हैं निजामुद्दीन औलिया जरी जरवब, पूरा तगमा दे दिया, और वो अपने खानकाह में पहुंच गए। कहा कि बेटा आओ पीठ पर बैठ जाओ। अब तो देखने लगा। कहा कि माफ़ कर दीजिए जितना मैंने आपको तकलीफ़ दिया। ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के औलिया हैं। कहते हैं लोग कि औलिया औलिया लोग करे रहता, का कहीं जा, हमन का मुर्शिद अल्लाह का दोस्त हो, इनमें कोनो शक नहीं खे। देखने कहते हैं ना, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक लड़का गया, उसके दिल में आया कि मैं दुनिया के अंदर जन्नत और जहन्नम देखूंगा। अब उसके बाद जो है यहाँ तक कि वो मदीना पहुँच गया। मस्जिद नबवी में एक तरफ कोने बैठा रहा, 3 दिन तक बैठा रहा। कहा कि
कितना प्रमाण चाहिए अल्लाह के औलिया होने का। देख लें क्या कह रहा है। उसके बाद खादिम सवाल करते हैं, ए बेटा क्या आए हो? कहा कि मैं दुनिया के अंदर जन्नत और जहन्नम देखूंगा। कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है। कहा कि नहीं, देखेंगे हम। कहा कि कहाँ से आए हो? कहा कि अलीगढ़ से आए हैं, यूपी से आए हैं। कहा कि तुम तो बहुत दूर चले आए हो। खादिम कह रहे हैं मदीना के मस्जिद नबवी के। कहा कि तुम तो बहुत दूर चले आए। कहा कि तब कहाँ जाएं? कहा कि बागमारी जाओ। ए मुर्शिद अल्लाह के दोस्त, नहीं मानोगे। मरीद नहीं मानता है और तो छोड़ दें, माने। उसके बाद जो है मुख्तसर में कलकत्ता उतर जाता है वो लड़का, यहाँ तक कि मछुआ बाजार चौमहानी पर खड़ा है। चौमहानी देख रहे हैं आप, वहाँ खड़ा है। अब सोच रहा है कहाँ जाए, अनजान इलाका है, मेरा रास्ता देखा हुआ नहीं है। एक टोपी वाला मिला, कहा कि भाई हम बागमारी जाएंगे, चलो पहुँचा देते हैं। गया वहीं बागमारी जहाँ मुर्शिद का हुजरे मुबारक है, उसके सामने उसी जगह बैठा रहा। मुर्शिद निकलते हैं तो क्या कहते हैं, उस लड़के को मेरे हुजरे मुबारक में भेजो। हुजरा में कोई नहीं जाता है, हुजरे मुबारक में भेज दो। सारे खादिम परेशान हैं। अब हुजरे मुबारक में वो पहुंच गया तो कहा कि मुर्शिद ने क्या कहा, क्या चले हो? कहा कि दुनिया के अंदर जन्नत और जहन्नम देखेंगे। हक्कानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्लि अला करीम मुहम्मद अली नानमीन सवाइलुन मिन सय्यिदना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अलैहि जुरियात व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मतिन मिन कमा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व रहम अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुर्शिद जो अपना चादर मुबारक उसके सिर पर डाल दिया। कहा कि क्या देखोगे पहले? कहा कि पहले जन्नत देखो। कहा कि अपने चादर मुबारक डाल दिया और 1 घंटा सिलसिला जारी रहा। देख ले मुर्शिद और देख ले मुरीद। कितना प्रमाण चाहिए अल्लाह के औलिया होने का, कितना चाहिए। अब तो वो है बाकी की जी जो बकुलिया मर जो बकुलिया। हक्कानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मालिक अल करीम रहमतुल लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि जुरियात व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मतिन मिन कमा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व रहम अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब 1 घंटा सिलसिला चलता रहा। अब ख़त्म हो गया। मुर्शिद ने चादर हटा लिया, मुबारक चादर। कहा कि अब क्या देखोगे? कहा कि जहन्नम देखेंगे। कहा कि बेटा नहीं देखता तो अच्छी बात है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा कि देखो चाहे मर जाए चाहे बिला जाए, देखेंगे हम। अब उसके बाद फिर चादर मुबारक लगा दिया, वही चादर। 5 मिनट नहीं चला कि चादर को फेंक देता है और पूरा बदन में कपकपी तारी हो गई। मुर्शिद हाथ पकड़ के बाहर हटा दिया। कहा कि इसको हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ाओ नहीं तो मर जाएगा। और वहां से लड़का चला भाग। देख ले मुर्शिद, ए अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रफीक, अल्लाह के मानने वाले। आज हम लोग लिया वजीफा और पीछे पड़ गए हैं। नहीं, ऐसा न करें। आपका मुर्शिद अल्लाह का दोस्त है जो गांस से जान दिलवाया और मुर्शिद के मुरीद ने करमनासा की रवानी को बदल दिया। और उनके मुरीद तुल्ला मियाँ अखनी के रहने वाले थे, मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहे थे। ए तुल्ला तेरी बीबी आ रही है, हम उनका पिछवे पड़ रह गए, तब चल जाइए ठाए से। न पढ़ो, नमाज पढ़ो, वजीफा पढ़ो, अपनी मुर्शिद की इज्जत करो, कदर करो, उसी में भलाई है, वरना कोई काम नहीं होगा। हक्कानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्लि अला करीम मुहम्मद अल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि जुरियात व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मतिन अजमईन कमा सल्लल्लाहु अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख लें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आज हमारी माँ बहनें बेटियां भी सुनेंगी, खास तौर से
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में जब आए, तशरीफ़ लाए, जब उनका अरबी पढ़ने का वक्त हुआ तो ले जाके उनकी माँ ने जो है दाखिला कराया और मौलाना साहब ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना कहनाम था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 पारा कुरान पढ़ दिया। यहाँ तक टीवी पढ़ता और नहीं तो मोबाइल बोलता ठाए ठाए नहीं। माँ की सिकम में है, वो भी बच्चा टीवी देख रहा है, आप ये न गफलत में ना हो। और माँ की सिकम में है, वो भी बच्चा अपनी अंगुली को चला रहा है मोबाइल पे। देख लें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब उनकी माँ के सिकम में थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी माँ डेली 18 पारा कुरान पढ़ती थी। आज हमारी माँ बहनें डेली जो है सीरियल देखती हैं, टीवी का पूरा प्रोग्राम चलाती हैं, यहाँ तक कि मोबाइल चलाती हैं, यहाँ तक कि अपने शौहर का इज्जत नहीं करती हैं। और नहीं तो कहियो दे हो बतिया ना करने होगा, वरना यहाँ भी खाली और वहीं भी खाली। 18 पारा डेली कुरान पढ़ती थी। इसलिए अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए दुनिया में, 18 पारा कुरान पढ़ दिया। हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व सहबिही व औलियाए मुहम्मद अजमईन। कमा सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुरीद हो अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। देख लें एक मुर्शिद हैं, मुर्शिद, उनकी बीवी डेली कहती थी कि आपके बहुत मुरीद हैं, कई लाख मुरीद हैं। कहा कि गिने चुने। उसके बाद कहा कि नहीं आपके बहुत मुरीद हैं, कहा कि गिने चुने। फिर तीसरा दिन कहा कि गिने चुने। यहाँ तक कि मुर्शिद अपना कस्ब शुरू कर दिया। यहाँ मुख्तसर में मुर्शिद की सज़ा जो है तजवीज़ हो गई। यहाँ तक कि मुर्शिद के लिए सज़ा, फांसी की सज़ा तजवीज़ हो गई और कल 8:30 बजे मुर्शिद की फांसी होगी। इतना ऐलान था, जितने मुरीद थे सारे मुरीदों में भगदड़ मच गई और मुर्शिद अकेले खड़े रहे, अकेले। अब उसके बाद जो है एक मुरीद जो है खाना खा रहा था, दूरी पर था, 2-4-5 किलोमीटर दूर पर रहल, और उसकी बीवी अब जो है ऐसे खाना उठाया था। पता चलता है कि मेरे मुर्शिद की 8:30 बजे फांसी है। अब उसके बाद जो है खाना रख दिया और वहाँ से चल दिया। कुछ दौड़ रहा है, कुछ पैदल चल रहा है, कुछ धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ तक कि करीब पहुँच जाता है। जज ने कहा मुर्शिद से कि कोई ख्वाहिश है, कहा कि 5 मिनट और। मुर्शिद देख रहा है कि मेरा मुरीद चल दिया है। अब उसके बाद मुरीद पहुंचता है, कहा कि जज साहब मेरे मुर्शिद के बदले में हम 2 आदमी तैयार हैं, मुर्शिद की रिहाई हो जाए और उसके बदले में हम दोनों फांसी पर चढ़ जाने के लिए तैयार हैं। इतना कहना था कि कहाँ फांसी कहाँ सजा, सारे पूरा खुल गया। और उसके बाद मुर्शिद ने दोनों का हाथ पकड़ के ले जाके अपनी बीवी से कहा, ये मेरा मुरीद है, ये मेरी मुरीदनी है। ऐसा मुरीद हो, ये नहीं कि वजीफा ले और लागो डायरेक्ट हो, ना हो। चली कुछ नहीं चलेगा मेरे भाई, मुर्शिद के हुक्म को मानने होगा। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह इतना माने कि मरने के बाद भी अपना चेहरा पूरब रखा। हम भी इतना माने। वही मुर्शिद आँख देने के लिए कोशिश करता है जो कि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को दिया, मुरीद को दिया। नहीं, आज हम लोग क्या किया? नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, फिरका के साथ, पार्टी के साथ, खाली मुंह में पार्टी है। पार्टी 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 माने शैतान। जहाँ पार्टी रहेगा वहाँ शैतान हाजिर है। जहाँ नमाज रहेगा, कुरान रहेगा, वजीफा रहेगा, इंशाअल्लाह ताला वहीं मेरा मुर्शिद भी रहेगा। हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व
وأهل بيت الأجريات وأزواج وصحابه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلم وبارك وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بابا فرید الدین گن سکر رحمت اللہ علیہ. میری ماں بہنیں بیٹیاں خاص طور سے سنیں گی، آپ ہی کے لیے ہے، ماں کی سکم میں ہے، وہ بھی بیٹا ہر کچھ کر رہا ہے. دیکھ لیں بابا فرید الدین گن سکر رحمت اللہ علیہ کی ماں. بابا فرید الدین گن سکر رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے سکم میں تھے تو ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. ان کی ماں کا تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. یہاں تک ٹی وی قضا نہ ہوئے کے چاہیے، نہ موبائل قضا ہوئے کے چاہیے. ٹی وی بڑھیا دی ہو اور نہ ہی تب بیاہ ہو نہ ہوئی. میرا پیر بھائی ہے، کہتا ہے 5 لاکھ روپیہ چاہیے نا، اب موٹکا سکڑی چاہیے نا، ایک تھے بولٹ چاہیے. اب بولٹ نکل گل با. کل حرام، سب حرام ہے. پیر بھائی ہے مانگتا ہے میرے بھائی. پیر بھائی کو تو پیر بھائی میں مل کر کے شادی کر لینا چاہیے. وہ ڈرنے نہ جالا کہ کہیں ہم کے ملی کہ نہ ملی. ان سے کیسے ہم کہو نا. دیکھ لیں بابا فرید الدین گن سکر رحمت اللہ کی ماں کا کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. جب دنیا میں آئے تو ان کو پہلے وضو کرتی تھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھیں، تب دودھ پلاتی تھیں اور دعا کرتی تھیں اے اللہ تعالیٰ میرے فرید کو ایسا بنانا کہ لوگ دیکھیں اور ایمان لا دیں. اور وہی ہوا. کچھ دن کے بعد جب نکلتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں لوگ تو ایمان لا دیتے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا دیا. آ کے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اے ماں لوگ دیکھتے ہیں ہم کو ایمان لا دیتے ہیں. کہا کہ اے بیٹا یہ تیرا نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھی نوجوان بھائی خیال کریں اپنے ماں باپ کا. دیکھ لیں بابا فرید الدین گن سکر رحمت اللہ علیہ کی ماں. کہا کہ بیٹا یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے. میں نے تیرے لیے دعا کیا کہ میرے فرید کو ایسا بنانا کہ لوگ دیکھیں اور ایمان لا دیں. تو بابا فرید الدین گن سکر رحمت اللہ علیہ نے کہا اے ماں سن لے، جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی یہ تیرا بیٹا فرید بھی نہیں جائے گا. آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم کیسے اولاد ہیں. چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہاں ہو تو دلدار نگر، کہاں ہو تو ڈی ایم بنی بفا سڑ گئی. وہی لائن سے ہم آئی نہیں. بہت ہم محنت کیلی لیکن کچھ نہ ملے. ٹھینگا کچھ نہیں ملا. مرشد لا کے یہاں کھڑا کر دیا. اللہ مرشد دعا کریں جو میرے مرشد نے مجھے دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حقانی درست اللہم صل علی محمد العالمین سبحان من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وأهل بيت الأجريات وأزواج وصحابه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے مرشد نے اجرائیل علیہ السلام کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. دیکھ لیں موت کو یاد کرنا. کہتے ہیں نا مرشد اپنے طرف سے تھوڑا دیا ہے، مرشد سب کچھ دیکھ کے دیا. یہ اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے. کو لوگ کہتے ہیں ہم جیونی لکھیں گے حقانی انجمن کا، ایک بھی نہیں لکھ سکتا ہے. اگر لکھے گا تو عوام پبلک گولی مار دے گی. نہیں لکھ پائیں گے. یہاں بہت لمبی کہانی ہے. دنیا کا سیاہی ختم ہو جائے گا، کیا نام دنیا کا کاغذ ختم ہو جائے گا اور سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی تو بھی حقانی انجمن کا آپ سینہ نہیں لکھ سکتے ہیں. آپ پوری آپ اپنے مرشد کے حکم کی تابعداری کریں. حقانی ضرور سے اللہم صل علی محمد العالمین سبحان من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وأهل بيت الأجريات وأزواج وصحابه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حقانی درود سے اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الكريم رحمة للعالمين سبحان من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيت الأجريات وأزواج وصحابه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.